Hello friends, welcome to iExamBee. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamBee. And in this video we will see something very important, that how is the descriptive English UI of LIC-AO mains exam. So friends, we will discuss that what are the things that you should take care of if you are appearing for LIC-AO mains and if you are writing the descriptive English paper, right? So this UI, it is very important to know beforehand कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या लैग्स हैं या क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं जिनको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स very quickly start with knowing more about the real exam user interface. iExamBee courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iExamBee hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iExamBee takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. So friends, now let's quickly see that on what parameters is our letter evaluated, or whatever we write in the descriptive paper, what are the main things that we should keep in mind while writing or attempting those questions, right? पहले हम ये जानते हैं कि एक लेटर किन क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट किया जाता है अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम लिख रहे हैं, उसमें आपने लेटर राइटिंग करी है। तो अब जो चीज़ें जिनको कंसिडर करके आपको नंबर मिलेंगे वो है आपकी ग्रामर और स्पेलिंग चेक होगी, आपकी वर्ड लिमिट चेक होगी, आपका कंटेंट और स्ट्रक्चर चेक होगा और आपका फॉर्मेट चेक होगा, स्पेशली लेटर के केस में। अब फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि ग्रामर और स्पेलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जिन चीज़ों ध्यान रखना है, और क्योंकि हम इतने सारे पेपर्स चेक करते हैं अपने स्टूडेंट्स के जो हमारे प्लेटफॉर्म में आकर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो वैसे मॉक्स को चेक करके हमें पता चलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेम गलतियां करते हैं। और वो गलतियां क्या है? पहली गलती है ग्रामर मिस्टेक्स, यानी कि पर्टिकुलरली मैं ग्रामर की बात करूं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि आर्टिकल्स की बहुत गलती करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बहुत गलती करते हैं, नाउन प्रोनाउन की अग्रीमेंट की गलती करते हैं और थोड़ी बहुत प्रेपोजिशंस की भी रहती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप लेटर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, उसमें आर्टिकल्स, अग्रीमेंट, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हो कि नाउन और प्रोनाउन का अग्रीमेंट का हो, उसका आपको खास ध्यान रखना है और प्रेपोजिशंस भी आपके इन प्लेस होने चाहिए। उसके बाद आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, आजकल ऐसा हो गया है कि कंप्यूटर या बॉट्स के थ्रू हमारे जो पेपर हैं जो हम देते हैं अपने एग्जाम में, वो बॉट्स के थ्रू चेक हो रहे हैं।
अब आजकल ऐसा हो गया है कि मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर बीइंग चेक्ड बाय बॉट्स, ठीक है। और जैसे ही मशीनरी आ जाती है चेकिंग में, वो ये सब एस्पेक्ट्स कि आपकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, आपकी ग्रामर सही है कि नहीं है, या आपकी पंक्चुएशन सही है कि नहीं है, आपके जो दो वर्ड्स के अगर बीच में आपने स्पेस सही नहीं डाली है, वो उस वर्ड को एक रैंडम वर्ड कंसिडर करके आपके नंबर काट लेगा। तो इसीलिए आपको स्पेसिंग का भी ध्यान देना है, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन का ध्यान देना है, इन सब चीजों का ध्यान ज्यादा देना है अब, क्योंकि आजकल जो चेकिंग है वो बॉट्स के थ्रू होने लग गई है, राइट। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ध्यान रखना है, पंक्चुएशन एरर्स का, और कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत क्लमजी सेंटेंसेस बना देते हैं, यानी कि वो सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं ये एक्चुअली कन्वे नहीं हो पाता है। तो आपका आर्टिकुलेशन जो है वो आपका सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए एडवाइजेबल है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर्म करें, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस फॉर्म ना करें। अब फ्रेंड्स आता है कि वर्ड लिमिट की बात, तो सबसे पहली बात एग्जाम का जो इंटरफेस है उसमें आपका वर्ड काउंटर जो है एकदम नीचे रहेगा, और वो आपको हो सकता है शुरू में ना दिखे। तो वर्ड काउंटर अगर आपको देखना है तो पूरा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब आपको वर्ड काउंटर दिखेगा, राइट। तो ऐसा मत सोचना कि आपके शायद इस टेस्ट में वर्ड काउंटर है ही नहीं, पूरा स्क्रॉल करो और तब आपको वर्ड काउंटर मिल जाएगा। ऑल्सो कुछ भी आप राइटिंग स्पेस में लिखेंगे, वो टू से लेके या फ्रॉम से लेके लास्ट नेम तक सब कुछ जो है कंट्रीब्यूट करेगा आपकी वर्ड काउंट में, ठीक है। और आपका जो विंडो है, राइटिंग स्पेस जो है, वो भी आपको पूरी नहीं दिखेगी, एज इन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या आपने आगे लिखा है। तो बिना बात के एंटर मत मारिएगा, एंटर केवल तब मारिएगा जब आप चाहते हैं कि एक लाइन चेंज हो जाए या पैराग्राफ चेंज हो जाए, ऑलराइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको हमने दिमाग में रख के अपना यूजर इंटरफेस बनाया है आई एग्जाम बी पर। तो अगर वैसे यूजर इंटरफेस पे अगर आपको कहीं प्रैक्टिस मिल जाए एग्जाम से पहले, सो नथिंग लाइक दैट, वहां जो गलतियां हैं वो हम पहले कर देते हैं एग्जाम में करने की बजाय। तो इससे बेहतर तो यही है कि हम गलतियां पहले करें और उनमें सुधार लाएं, जिससे कि एग्जाम में हमारा परफेक्शन आए, राइट। अब अगर आगे चलें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट और स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो लेटर है वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको उसमें अपना पर्पस लिखना है, फिर उसके बाद आपको इशू बताना है अगर कोई इशू है तो, और फिर उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है या वे फॉरवर्ड बताना है। तो ये स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर्ली फॉलोड होना चाहिए, राइट। सो और कंटेंट में जो पूछा है आपके क्वेश्चन में, अगर लिखा है कि लेटर टू द एडिटर लिखना है डिस्क्राइबिंग कि आपका कितना नॉइस पोल्यूशन है, सो यू हैव टू मेंशन अबाउट नॉइस पोल्यूशन। कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स भूल ही जाते हैं कि हमें किस बारे में लिखना है। एक बारी पार्किंग पे आया था लिखने का, तो हमने देखा जब प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसमें भी पार्किंग की बजाय वो शॉपिंग और भीड़ यहाँ पहुंच गए थे। बट देन आपको जो है अपना टॉपिक से डिविएट नहीं होना है और उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो मेंशन करनी है, राइट। अब इसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मेट, और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर्मल लेटर में आपका फ्रॉम आएगा, आप वर्ड लिखेंगे फ्रॉम, फिर आप लिखेंगे सेल्फ एड्रेस या जो भी फेक आपका गिवन है क्वेश्चन में। अपना एड्रेस आप नहीं लिखेंगे, अपने बारे में कोई भी हिंट्स आप वहां पेपर में नहीं देंगे, राइट। फिर उसके बाद डेट आती है, फिर टू एड्रेस ऑफ एड्रेसी आता है, राइट। फ्रॉम और टू दोनों आएगा, इनमें कॉमास नहीं डालेंगे हम थ्रू आउट, एड्रेसेस में भी नहीं डालेंगे, फ्रॉम और टू में भी नहीं डालेंगे, राइट। फिर सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया जाता है, पर हैविंग सेड दैट वहां पर जो आपका यूजर इंटरफेस है उसमें अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं होता है, सो यू कैन नॉट अंडरलाइन द सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर आ जाता है, राइट। आपको ये लिखना नहीं है बॉडी ऑफ द लेटर, ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको सीधा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर अपना इशू वहां पे बता देना है, राइट। उसके बाद योर्स फेथफुली सिंसियरली, आजकल स्टूडेंट्स ये बहुत गलती कर रहे हैं, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऐसे लिख देते हैं, दिस इज ईमेल लैंग्वेज, राइट। वो नहीं लिखना है, आप योर्स फेथफुली और सिंसियरली पर ही स्टिक करेंगे, ट्रूली भी लिख सकते हैं अगर फॉर्मल लेटर है तो। और फिर उसके बाद नाम या
या XYZ, ठीक है। अब इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर में आपका जो है सेल्फ एड्रेस तो रहता है, डेट भी रहती है और सैल्यूटेशन भी रहता है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट और टू नहीं रहता है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर रहता है और फिर योर्स लविंगली ऐसे करके आप लिखते हैं। ऑल्सो एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि इनफॉर्मल लेटर जब होता है उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करके अपनी वेलबींग बताते हैं और उनकी भी अपने परिवार वालों की वेलबींग पूछते हैं, ठीक है। और उसके बाद योर्स लविंगली ऐसा कुछ कहकर थोड़ा पर्सनल टच देकर आप उसको एंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपके 2 तरह के फॉर्मेट्स हैं, इनको याद रखिएगा और जहां भी हो सके एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर वैसा ही आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए जैसा आपका यूजर इंटरफेस आपका एग्जाम में रहता है तो नथिंग लाइक दैट, उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। ऑल्सो एक और जाते जाते बात कि आप सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई सेटिंग्स ये सब आप नहीं कर सकते हैं यूजर इंटरफेस में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है सब कुछ लेफ्ट अलाइंड ही रहता है। तो कभी कभी हमें लगता है ऐसे का टॉपिक बीच में लिख दो या कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं होगा। You cannot change the alignment, वो लेफ्ट अलाइंड ही रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए विद रिगार्ड टू योर LIC AO डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या hello@iexambee.com पे लिख सकते हैं। पूरी कोशिश करिएगा कि एग्जाम में जाने से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले को कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट आप एक बारी प्रैक्टिस कर लें कंप्यूटर पर, क्योंकि रिटन जो है कॉपी में वो बात नहीं है। कभी कभी कीज नहीं दबती हैं, कभी कभी हमें काउंटर नहीं पता चलता है कि उसको भी देखना है, तो ये सब चीजें पहले प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बिकॉज हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए इतने इंपॉर्टेंट स्टेज पर आकर। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।